Hello dear, this is Sangeeta from CAD Center. Hope you are having great day. Today I am going to share you some basic information on StatPro software. Let's start. So what is StatPro software? StatPro is a structural analysis and design software which is widely used to analyze and design structure for bridges, towers, buildings, industries, structures, water tank, etc. But the question is that what is structural analysis? Structural analysis is determination of loads on structural component. Means what will be the capacity of that member to sustain load safely. But which are the structural component? Structural components are beam, column, slab and footing. On screen you can see the some image. This is the typical RC frame building which having the component of footing, beam, slab, column. These are the main structural component. But there are a subtype of this structural component like beam have a simply supported beam, cantilever beam, etc. Column have a short column, long column, and slab have a one-way slab, two-way slab, and footing have a shallow footing, deep footing. These are the sub detailed structures. These all structures also we can design through this software, but mainly each structure have divided into four main components, that is foundation, beam, slab and column. This is all about basics of structures. Now move towards the software. On screen, you can see this is a software window, which is StatPro software window. Let's start software. Now see, this is a grid space. This grid space is called as a model space. Model space means where we can create our structural model like bridges, buildings, whatever, etc. For example, just I am creating some building structure for example. Okay, now I'm start to create a building structure model. I'm setting some unit setup according to our requirement. Now I'm creating frame model having of beam length 9 meter, height 9 meter and width 9 meter. I'm taking a common just example. Okay, just I created some building structure. Okay, this is called as a structural frame model. Means there are only structural components are available. That's why it's called as a structural frame model. ओके यहाँ पे सिर्फ structural components है जैसे कि this horizontal structural component is called as a beam, this vertical structural component is called as a column. If we are adding here some footing, it's called as a footing like that. Okay, नाउ ऑन दिस फ्रेम वी स्टार्ट टू डूइंग एनालिसिस. इस फ्रेम के ऊपर हम लोग एनालिसिस करने वाले जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था स्ट्रक्चरल एनालिसिस. सो दैट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस का स्टेप वाइज प्रोसीजर है. दैट इज स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, लोडिंग, आरसी डिजाइन एंड आउटपुट. दिस स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को. देन उसके बाद वी गेट अ सम आउटपुट फाइल दैट इज कंटेंट्स ऑफ डिटेल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर. उस आउटपुट फाइल के थ्रू हम लोगों को इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो भी ब्रिज स्ट्रक्चर हो सकता है, वाटर टैंक स्ट्रक्चर हो सकता है, उसका डिटेल्स मिलेंगे. ओके, अभी स्टेप वाइज प्रोसीजर में जो मैंने पॉइंट्स बताए थे स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, उसके डिटेल्स देखते हैं. स्पेसिफिकेशन मतलब क्या? स्पेसिफिकेशन मीन्स मटेरियल. मटेरियल जैसे कि बीम है, वुडन का बीम है, कंक्रीट का बीम है, स्टील का बीम है, लाइक दैट स्पेसिफिकेशन हम लोग सिलेक्ट करेंगे. देन आता है प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में जैसे कि शेप. प्रॉपर्टीज मतलब क्या? शेप सिलेक्ट करेंगे. जैसे कि यहाँ पे सम शेप्स है, सर्कुलर कॉलम चाहिए, बीम चाहिए, रेक्टेंगुलर कॉलम और बीम, टी शेप, trapezoidal shape, I section, tapered shape, like that shapes also we can select. Okay, यहाँ पे इमेज देख सकते हो आप शेप्स ऑफ
कंक्रीट के, जैसे कि कंक्रीट में बेसिकली यूज किया जाता है सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, बॉक्स शेप और सम हेक्सागोनल शेप लाइक दैट। ओके, दिस इज अबाउट अ शेप्स। जैसे आता है, नेक्स्ट आता है लोडिंग। ठीक है, लोडिंग में मेनली लोडिंग आर डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, दैट इज लाइव लोड, डेड लोड, सेस्मिक लोड, विंड लोड, एंड देन इज ए लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स। उसमें कि आईएस कोड के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन किया जाता है, जैसे कि डेड लोड प्लस लाइव लोड, समवट डिपेंड्स ऑन वो कुछ कोड्स वगैरह होते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन किया जाता है। सम डेड लोड प्लस सेस्मिक लोड का कैलकुलेशन होता है, दैट इज अ लोड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि सम पॉइंट लोड्स है। दिस इज फर्स्ट बीम इज ए कंटेंट्स ऑफ पॉइंट लोड। यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जैसे कि ऑल पूरे बीम के ऊपर कंटिन्यूस सेम लोड आने वाला है। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, जैसे कि कुछ जगह पे ज्यादा लोड है और कुछ जगह पे कम लोड है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन टाइप लोड्स ऑल्सो वी कैन अप्लाई ऑन our model through a StatPro सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम लोगों ने फ्रेम मॉडल के ऊपर स्पेसिफिकेशन अप्लाई किया, प्रॉपर्टीज अप्लाई किए, देन लोडिंग अप्लाई किए। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है आरसी डिजाइन। ठीक है, सो व्हाट इज आरसी डिजाइन? आरसी डिजाइन में क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग बिल्डिंग का डिजाइन स्टार्ट करने वाले। जैसे कि बिल्डिंग के डिजाइन में क्या होगा, हम लोग जो लोड अप्लाई किए उस लोड का जो हम लोगों ने शेप लिया है और जो साइजेस लिए उसका वो कैपेसिटी कैपेबल है क्या नहीं, वो हम लोग एनालिसिस डिजाइन के थ्रू चेक करने वाले हैं। देन एनालिसिस डिजाइन के थ्रू चेक करने के बाद नेक्स्ट अपना आउटपुट फाइल आता है। आउटपुट फाइल में हम लोगों को मिलता है जैसे कि डिटेल्स, कौन से डिटेल्स होंगे उस आउटपुट फाइल में, हम लोगों के पास डिटेल्स होंगे कि शेप जो हम लोगों ने लिया था वो शेप होगा। एक 1 मिनट, मैं स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन शेयर करती हूँ जहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चरल मॉडल डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्क्रीट डिजाइन पूरा किया है, इसके ऊपर मैंने पहले स्पेसिफिकेशन अप्लाई किए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सम रेंडर्ड इमेज ऑफ दिस स्ट्रक्चरल मॉडल, जहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप लिया है बीम एंड कॉलम के लिए। ठीक है, आप उसको पूरा रोटेट करके भी देख सकते हो, ऑर्बिट करके। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे स्लैब वगैरह ऐड नहीं किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी डिटेल्स हम लोग चेक करें, डिटेल्स में क्या आता है, बीम के ऊपर का लोड, मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स, जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो सस्टेन कर रहे हैं क्या नहीं, बीम का शेप एंड उसका साइज। यहाँ पे अगर मैंने बीम पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो कि बीम का क्या हो रहा है, रेड कलर में बीम के फ्रेम के ऊपर रेड कलर ऐड हो चुका है, दैट इज स्ट्रेसेस ऑन दिस फ्रेम। वो स्ट्रेसेस शो कर रहा है यहाँ पे। अगर मैंने स्ट्रेसेस पे सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे स्ट्रेसेस भी शो करेगा, विच टाइप ऑफ स्ट्रेसेस ले रहा है। देन ग्राफ के ऊपर अकॉर्डिंग टू बीम, जो मैं बीम सिलेक्ट करूँ यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो कि उसका बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन, शियर फोर्स रिएक्शन, फोर्सेस रिएक्शन लाइक दैट। ठीक है, जो भी कॉलम सिलेक्ट किए कॉलम के ऊपर का आएगा, बीम सिलेक्ट किए बीम के ऊपर के स्ट्रेसेस वगैरह ग्राफ्स के थ्रू देख सकते हो। ये हुआ बीम के ऊपर स्ट्रेसेस। देन आते हैं नोड पॉइंट्स। नोड पॉइंट्स मतलब जॉइंट्स, जहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया, दिस इज ए रेड डॉट इज कॉल्ड एज ए नोड पॉइंट, दैट इज जॉइंट्स ऑफ बीम्स एंड कॉलम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये जो ग्रीन कलर का शो हो रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट थ्रू ए जॉइंट। जॉइंट के थ्रू जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ग्रीन कलर में इसमें शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ए बीम एंड कॉलम्स, स्ट्रेसेस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोगों को आरसी डिजाइन के थ्रू मिलेगा। अभी हम लोगों ने स्ट्रेसेस चेक किया एंड डिस्प्लेसमेंट चेक किया, देन फाइनल आउटपुट आता है डिटेल्स ऑफ स्टील। डिटेल्स ऑफ स्टील में हम लोगों को मिलेगा क्वांटिटी ऑफ स्टील, जो क्वांटिटी ऑफ स्टील हम लोगों को टन और केजी में हम लोगों को रिपोर्ट में मिल सकता है। इफ हम लोगों ने रिपोर्ट कैलकुलेट किया, ठीक है, मैं सम एग्जांपल के लिए यहाँ पे रिपोर्ट शो करती हूँ। यहाँ पे उसी मॉडल का मैंने यहाँ पे ईच एंड एवरी मेंबर डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में पैनल पे आप मेरा कर्सर जो मैं जहाँ पे मैं मूव कर रही हूँ वहां पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारे बीम के डिजाइन है, जैसे कि बीम का लेंथ है, उसका ऑगिंग सैगिंग कितना हुआ है। देन यहाँ पे नीचे शो किया है 2T8, जैसे कि बॉटम लेयर बार्स एंड टॉप लेयर बार्स। मतलब क्या है, यहाँ पे बॉटम में कितने बार्स आए, टॉप पे कितने बार्स है। यहाँ पे क्या है, बॉटम में सम मेंबर अगर सिलेक्ट किए उसका यहाँ पे शो करेगा, टॉप में 8 mm डायमीटर के 2 बार्स है,
और बॉटम में 2 नंबर ऑफ 8 mm डायमीटर सेम शो किया है अकॉर्डिंग टू लोड। जो भी अगर लोड वेरिएशन ज़्यादा होगा तो टॉप में डायमीटर ज़्यादा हो सकता है और बॉटम में कम हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लोडिंग पैटर्न। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अ बीम्स एंड कॉलम्स। ठीक है, इसका एक शेड्यूल्ड आउटपुट फाइल आता है। ठीक है, इसका जो भी एक शेड्यूल्ड आउटपुट फाइल आता है जो एक डीएक्सएफ फॉर्मेट में होता है, फाइल फॉर्मेट होता है उसका डीएक्सएफ। ठीक है, बट जहाँ पे शो किया हुआ है कि बीम कॉलम जॉइंट जो भी होता है वहाँ पे जो भी नंबर ऑफ बार्स की पोजीशन कैसे की हुई है और उसका सेटिंग, मतलब जहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन लेके हम लोग बीम और कॉलम का चेक करेंगे तो वहाँ पे बार पोजीशन कैसे होगा, शियर रेनफोर्समेंट का पोजीशन कैसे होगा। शियर रेनफोर्समेंट मतलब होता है स्टीरअप्स। ओके, ओके, इसको अगर हम लोग लोड करेंगे तो इसका सेव करके हम लोग ऑटोकैड फाइल में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका सेव करके ऑटोकैड फाइल में ओपन किया है। ठीक है, ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो कि ये एक बीम का मैंने जो डिजाइन किया था उस फ्रेम मॉडल का, उसके डिटेल्स यहाँ पे मैंने सेव करके लिए है। ठीक है, यहाँ पे शो किया है कि सेक्शन ए का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, सेक्शन बी का ऐसे सारे क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे 3 बीम है। ठीक है, स्पैन 1 to यहाँ तक एक बीम है, यहाँ से यहाँ तक एक बीम है और यहाँ से यहाँ तक एक बीम है। इसको हम लोगों को रीड्रॉ करने की ऑटोकैड में जरूरत नहीं है, स्ट्रैड प्रो के थ्रू हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे शो किया है कि नंबर ऑफ बार्स, जैसे कि टॉप में वहाँ पे हम लोगों को था 2 नंबर्स ऑफ 8 mm डायमीटर बार, सेम शो किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो 2 नंबर्स ऑफ 8 mm डायमीटर एट टॉप। यहाँ पे बॉटम में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो 2 नंबर्स ऑफ 8 mm डायमीटर। ठीक है, लाइक दैट आपके डिटेल्स यहाँ पे बीम के शो किए। ठीक है, सेम कॉलम का भी आपको डिटेल्स आएंगे डिजाइन करने के बाद। ठीक है, एक कॉलम का एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको उसी स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बार शो किया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो भी शो किया है अगेन 2 नंबर्स एंड 16 mm डायमीटर ऑफ बार्स, लाइक दैट आपके बार डिटेल्स यहाँ पे शो किए हुए। दिस इज ऑल वी कैन गेट डिटेल्स थ्रू ए स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर। Okay, now I'm going to take you through some images which will show you how to how will implement this data on actual model। ठीक है, जो भी डेटा हम लोगों को मिल रहा है स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों को डेटा क्या मिलेगा, साइजेस ऑफ बीम्स, कॉलम्स, फुटिंग, स्लैब, स्लैब का थिकनेस होगा। ठीक है, उसमें स्टील, ठीक है, कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील होगा, कितना डायरेक्शनल कौन सा स्टील होगा, कितने डायमीटर का होगा, एंड स्पेसिंग। ठीक है, ईच एंड एवरी बार का स्पेसिंग जो भी होगा वो सारा डिटेल्स हम लोगों को स्टार्ट प्रूफ के थ्रू मिलेगा। बट एक्चुअल मॉडल में जैसे उसका प्लेसिंग कैसे किया जाएगा, एक्चुअल मॉडल मीन्स जैसे कि आपने साइट पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल एनालिसिस होने के बाद जो भी आपका मतलब जैसे कि फुटिंग वगैरह उसका स्ट्रक्चरल फ्रेम अगर चेक किया तो कैसे दिखेगा वो मैं आपको इमेज के थ्रू शो करूंगी। ठीक है, दिस इज ए सम बीम एंड कॉलम जॉइंट इमेज यहाँ पे शो किया है। ठीक है, जैसे कि बार्स जो भी हम लोगों के डिटेल स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर के थ्रू मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बार्स है, उसका डायमीटर कितना है 8 mm। ठीक है, एंड नाउ स्टीरअप्स जो सर्कुलर राउंड सॉरी रेक्टेंगुलर राउंड किया हुआ है दैट इज स्टीरअप, दैट इज कॉल्ड एज ए शियर रेनफोर्समेंट। यहाँ पे 100 150 जो भी शो किया है स्टीरअप्स का स्पेसिंग शो किया है। दिस इज बीम, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इज ए कॉलम। ठीक है, उसके स्टील डिटेल्स यहाँ पे शो किए। ठीक है, एक्चुअल साइट में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि फुटिंग का है, दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैलकुलेटेड डेटा थ्रू स्टैट प्रो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज अबाउट फुटिंग। फुटिंग का अगर हम लोगों ने डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद आपको यहाँ पे फुटिंग स्टील का डिटेल्स आएंगे, जैसे कि एक्स डायरेक्शनल स्टील कितना है, वाई डायरेक्शनल स्टील कितना है, उसका ओवरलैपिंग लेंथ कितना है वगैरह आपको वहाँ पे स्टार्ट प्रो के थ्रू मिल जाएगा। एक्चुअल साइट पे इस इमेज जैसे इमेज में शो किया है ऐसे ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। देन दिस इज अबाउट ए स्लैब। ठीक है, स्लैब में स्टील, जैसे कि स्लैब में मोस्टली स्टील कौन सा आता है, एक्स डायरेक्शनल स्टील एंड वाई डायरेक्शनल स्टील आते हैं। डिपेंड्स ऑन स्लैब टाइप होता है, जैसे कि स्लैब में 2 टाइप्स होते हैं, 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब। अकॉर्डिंग टू दैट वो स्टील की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बट मेनली बोथ टाइप में एक्स डायरेक्शनल स्टील होता है, वाई डायरेक्शनल स्टील होता है, एक मेन स्टील और एक सब वे स्टील ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे बैंड वगैरह अकॉर्डिंग टू बीम पोजीशन अकॉर्डिंग टू डिजाइन प्रोवाइड किया जाते हैं। एक्चुअल साइट में आपका जो भी स्टील वहाँ पे आता है स्पेसिंग वगैरह ये ऐसे साइट पे आपका शो किया हुआ होता है। ठीक है, दिस इज कैलकुलेटेड डेटा एंड साइट पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे
किया जाता है। ठीक है, ये हुआ अबाउट स्टैट प्रो और उसका इम्प्लीमेंटेशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कि स्टैट प्रो के थ्रू हम लोग ब्रिज डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टेयरकेस, वाटर टैंक डिज़ाइन। ठीक है, सब मैं इमेजेस आपको शो करूंगी उसके। ठीक है, दिस इज अबाउट अ बिल्डिंग मॉडल जो हम लोग डिज़ाइन करने के बाद लास्ट में आपको ऐसे शो करेगा इसका मॉडल। जैसे यहाँ पे वर्टिकल मेंबर्स होंगे कॉलम, उसका उन्होंने अगेन रेक्टेंगुलर शेप लिया हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स आ रहे बीम, उसका भी रेक्टेंगुलर शेप है। एंड पिंक कलर में जो पैनल्स आपको शो हो रहे दैट इज ए स्लैब। ठीक है, स्लैब का जो भी वहाँ पे डिज़ाइन आया हुआ है डेटा आपको अगेन रिपोर्ट के थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, दैट इज स्लैब। यहाँ पे बिल्डिंग मॉडल में स्टेयरकेस का अलग डिजाइन किया जाता है स्टैट प्रो में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, समवॉट में जूम करके शो करूंगी आपके। इंक्लाइन स्लैब होता है स्टेयरकेस में, कैसे कि वेस्ट स्लैब जो होता है इंक्लाइन स्लैब होता है, उसकी डिजाइन थोड़ी अलग होती है बिकॉज वहाँ पे फोर्सेस एंड रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट इसको अलग डिजाइन करना पड़ेगा। अगेन इसका रिएक्शन अप्लाई होने के बाद कैसे शो होगा, ये मॉडल है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे उसका रेंडर्ड मॉडल है, पिंक कलर का स्लैब है। अगेन वर्टिकल इज ए कॉलम, हॉरिजॉन्टल इज ए बीम। ठीक है, नेक्स्ट इज ए वाटर टैंक डिजाइन। यहाँ पे शो किया है वाटर टैंक डिजाइन कैसे। वाटर टैंक में क्या होता है, अगर सर्कुलर होगा रेक्टेंगुलर होगा दैट इज ए शेयर वॉल। ठीक है, जैसे वहाँ पे वाटर की फोर्स उस वॉल पे होगा दैट इज ए कॉन्क्रीट वॉल होती है, उसके ऊपर एक्ट होता है, उसका डिजाइन थोड़ा अलग होता है। नीचे स्टील स्ट्रक्चर है, सेम स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन भी आप स्टैट प्रो के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज ए वाटर टैंक डिजाइन मॉडल थ्रू ए स्टैट प्रो। दिस इज ऑल अबाउट ए स्टैट प्रो। होप ऑल डाउट्स आर क्लियर। ओके, लास्ट में मैं आपको शो करूंगी कि रिपोर्ट जब मैंने बताया था कि आपको फाइनली रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, आई विल ओपन सम डेटा। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये ऐसी एक पीडीएफ रिपोर्ट आपको स्टैट प्रो के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे शो किया है बीम। ठीक है, ये बीम का रिपोर्ट है, सेम कॉलम का आ जाएगा और स्लैब का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीम में क्या शो किया है, बीम का टाइप शो किया है और ओके ओके शो किया है। ओके ओके का मतलब क्या है, जो भी साइज आपने बीम को अप्लाई किया हुआ है स्टैट प्रो में एंड उसमें जो भी स्टील का आपने मतलब डायमीटर वगैरह बार का डायमीटर डिसाइड किया दैट विल बी ए ओके, मतलब बीम फेल नहीं हुआ है। जो भी लोडिंग सिस्टम है, लोडिंग सिस्टम के लिए साइज एंड बार डायमीटर शुड बी परफेक्ट, मतलब एक भी बीम आपका फेल नहीं हुआ है। सारे बीम यहाँ पे अगर फेल होता है तो फेल भी यहाँ पे शो करेगा। फेल होने के बाद आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा, उसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू साइज आपका बार डायमीटर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीम की लेंथ वगैरह सम बीम के डायमीटर। ठीक है, जैसे आपकी आप ये पूरी शीट एंड तक देखेंगे, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील भी आएगा और उसके नंबर ऑफ बार्स भी पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, ये अकॉर्ड IS 456 अकॉर्डिंग टू आपका पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर। ओके, होप ऑल डाउट्स आर क्लियर। ठीक है, अबाउट एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट टू सर and also fee structure you can contact it sir. Have a nice day. Thank you.